ہر آدمی کسی نہ کسی جستجو میں پھرتا ہے۔ ایسا کون سا وہ سرمایہ اور خزانہ ہے جسے انسان ساری زندگی ڈھونڈتا رہتا ہے؟ زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر اس کی تلاش ختم نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے۔ ساری زندگی وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کی اس تلاش میں مدد اور معاونت کرنے کے لیے اسے زندگی میں بے شمار لوگ ملتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رہنمائی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جن کے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دنیا کو دل کی آنکھ سے دیکھ سکیں اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو بھی صحیح راستے پر لگا سکیں۔ لیکن یہ پہچان از حد مشکل ہے، کیونکہ ہمارے جیسا جب کوئی طالب یا جستجو کرنے والا کسی کے پاس جاتا ہے تو ہم اپنی چاہت سے آگاہ نہیں ہوتے، ہمیں اپنی چاہت کی پوری معرفت نہیں ہوتی، تو یہاں سے پھر ہمارے لیے دقت والا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں چاہیے کیا۔ جب ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا تو پھر آگے اس بات کا تعین ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک ڈگر پر چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے ہیں۔ اور کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ متلاشی حق کی جستجو کیسی ہونی چاہیے اور اس راہ میں کسی مرشد، کسی گرو، کسی رہنما کی کتنی اہمیت، کتنی قدر و قیمت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں خوب سے خوب کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ انسان کی خوب سے خوب کی اس تلاش کو آپ ایک خزانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والا ہر آدمی ایک خزانے کا متلاشی ہے، خزانے کی تلاش میں ہے۔ کوئی اس خزانے کو مادی دنیا کی تعمیر و ترقی کی صورت میں دیکھتا ہے اور کوئی روحانی بالغی، روحانی اسپریچول اٹینمنٹ کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ جو جستجو ہے وہ جستجو بنیادی طور پہ ایک ٹریجر کی ہے، ایک خزانے کی ہے، ایک سرچشمے کی ہے، اس سے جڑنے کی ہے۔ اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے صوفی عنایت خان کی بات پیش کرتا ہوں۔ صوفی عنایت خان صاحب چشتیہ سلسلے کے بڑے معروف ہو، مشہور بزرگ ہوئے ہیں۔ انہوں نے یورپ میں جا کے تصوف کی شمع روشن کی، لوگوں کو انلائٹن کیا۔ میں بات صوفی عنایت خان صاحب کی کر رہا تھا۔ صوفی عنایت خان صاحب کہتے ہیں کہ روحانی جو خزانہ ہے، جو روحانی خزانے کا حصول ہے، اس کے لیے آدمی کو شروع سے لے کر، یعنی اس وقت سے لے کر جہاں سے انسان کو سوسائٹی نے کچھ سکھانے کا کام شروع کیا، یعنی وہاں سے لے کر انسان کو آخر تک وہ سب کچھ بھلانا ہوتا ہے جسے وہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں سے، مختلف طبقات سے سیکھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کیسے بھلایا جائے۔ وہ معلومات نہ چاہنے کے باوجود بھی انسان کے شعور سے ہو کر لاشعور کا حصہ بن چکی ہوتا ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ ساری زندگی اسی معلوم کے نتیجے میں گزارے۔
उसी मालूमात को सामने रख कर इंसान सारी ज़िंदगी अपना सफ़र जारी और सारी रखता है और ज़िंदगी में अपने सेट किए हुए हदफ यानी किसी ख़जाने दुनियावी या रूहानी ख़जाने के हसूल की कोशिश के लिए भी वो सारी ज़िंदगी अमल पैरा रहता है। अब बात यह है कि उस मालूम को कैसे भुलाया जाए जो शुरू से आखिर तक इंसान के जहन में फीड कर दिया जाता है। अब जो कुछ इंसान ने सीखा होता है वो इंसान के अंदर है, वो उसके मन में है, मगर जब इंसान को दानिश हासिल होती है वो उसी वक्त हासिल हो सकती है जब वो सब कुछ अपने मन में छुपी सारी मालूमात को भुला देता है। इस लर्निंग को जब वो अनलर्न करता है तो तब वो असल जो दानिश है वो उभरती है। वो दानिश मुआशरे, तालीमी इदारे, दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारिब, हर एक चीज़ से आज़ाद होती है। उस दानिश का किसी इदारे से, किसी सोसाइटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो एक हकीकी दानिश है। बात दरअसल ये है कि इंसान में जितनी भी दानिश कम होगी, इंसान अपने तसव्वुरात पे, अपने ख़यालात पे और सोसाइटी से सीखी हुई बातों से उतना ज़्यादा सख्ती से कारबंद रहेगा। यानी वो नई किसी बात पे सोचने के लिए तैयार ही नहीं होगा। ये होगा क्यों? ये बुनियादी तौर पे उस वक्त होता है जब इंसान में दानिश की कमी हो। अगर इंसान के अंदर दानिश का अल्लाह की तरफ से रखा हुआ सरचश्मा जब फूटता है तो वो इंसान फिर एक बच्चे से सीखने के लिए भी तैयार होता है। बच्चा तो दूर की बात है, वो तो फितरत के कुर्ब में होता है। मालिक फरमाता है कि हर बच्चा इंसान की फितरत पे पैदा हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो चूज़ा फिरता है, इस चूज़े से भी वो इंसान सीखने के लिए तैयार होता है। वो इंसान, दानिशमंद इंसान, अपनी सोच को, अपनी समझ को हतमी नहीं समझता। वो ये समझता है कि हर लम्हे मालिक की एक नई सिफत जलवा अफरोज़ है, एक मालिक का एक नया जलवा ज़हूर पजीर है। तो हर लम्हे का एक अपना सच है। वो अपने मन की आँख से उस नए जलवे के साथ जुड़ना चाहता है। हर नए जलवे में एक नई मार्फत है, एक नई दानिश है। ये एक ऐसी दानिश है जो आप समझे कि जंगल के फूल की तरह है। ऐसी दानिश है, एक ऐसा खुशबूदार ये फूल है कि जिसे आपसे पहले किसी ने नहीं देखा। तो हम ऐसी दानिश से सोसाइटी अमूमी तौर पे दूर रहती है। अगर ऐसी दानिश की तरह पैदा करने के लिए कोई महफिल, कोई प्रोग्राम, कोई सेमिनार्स भी हों तो उनमें भी ऐसी दानिशवराना बातें बयान की जाती हैं और लोग ये कोशिश करते हैं कि उन दानिशवराना बातों को याद कर दिया जाए, उन्हें क्रैम कर दिया जाए। अब कितनी बातें इंसान अपनी यादाश्त में रख सकता है? उससे बेहतर नहीं है कि ये जो सोसाइटी की दी हुई दानिश है इससे इंसान खाली हो जाए और अल्लाह पाक की मन में रखी हुई दानिश को उभरने दे। जब वो दानिश उभरती है तो फिर ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। आप बस चंद लम्हों के लिए अपने कुर्ब व जवार से आंखें बंद करके अपने दिल पे यकसू होते हैं और आपको अपने दिल में चलने वाले ख़यालात, एहसासात आपको महसूस होना शुरू हो जाते हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी उसी अल्लाह के रोशन किए हुए एक दिए की रोशनी में ज़िंदगी बसर करते हैं। ये गुजारिश करने का मकसद ये है कि एक दानिशमंद आदमी हर वक्त सोसाइटी के दिए हुए तजर्बात, मुशाहदात पर भी हर लम्हे नज़रसानी करने के लिए तैयार पाया जाता है। उसे ज़रा बराबर दिक्कत नहीं होती कि बात सामने करने वाला कौन है। वो ये देखता है कि बात की क्या जा रही है। अगर कहीं से भी उसे सच की एक झलक मिले तो वो ये देखना पसंद नहीं करता कि ये झलक कहाँ से उभर रही है। वो झलक चूँकि सच की झलक होती है तो उसका दिल, उसका जान बेकरार होता है कि वो बग़ैर किसी मानी मफ़हूम के
बग़ैर किसी पसोपेश के वो फ़ौरन उस उभरते हुए सच के साथ खुद को जोड़ ले। और यूं जब इंसान सच के साथ जुड़ने का ये अमल शुरू करता है तो तब उसके मन की दानिशमंदी उभरना शुरू हो जाती है। ये वो दानिशमंदी, ये वो ख़जाना है। दानिशमंदी ये वो ख़जाना है जो मालिक की तरफ से इंसान के अंदर रखा हुआ है। हर इंसान बुनियादी तौर पे इसी गठरी में रखे हुए लाल को पाना चाहता है। तो सैयद मीरा भीख सरकार फरमाते हैं कि भीखा भाका कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरत खोलत जानत नहीं, क्यों फिरे कंगाल। कि आप फरमाते हैं कि हर एक की, हर इंसान के मन के अंदर एक गठरी में लाल है। बस इंसान मन की गठरी की जो गिरा है उसे खोलना नहीं जानता, इसी वजह से वो कंगाल है। यानी इंसान दानिश के बगैर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और उस पे हैरानी वाली बात यह है कि अपने इस तर्ज़ फ़िक्र को इंसान बड़ी बेसमझी के साथ दानिशवरी का नाम दिए रखता है। ये ऐसी दानिशवरी है जो ना तो इंसान को इस दुनिया में सुख से रहने देती है, ना ही अगले दयार में वो सुरखरू होके अल्लाह की बारगाह में पहुंच पाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुर्ब व जवार की बातें ज़रूर सुनें, लेकिन कुर्ब व जवार की सारी बातें, सारी गुफ्तगू, सारे गीतों को आप अपने मन में रखे हुए सच के सरचश्मे को उभारने के लिए इस्तेमाल में लें, ना कि सिर्फ उन्हें याद करके आप मुख्तलिफ महफिलों में अपनी दानिश